हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडरेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक है। सो नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम दैट यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर IPU लीड एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर BTech lateral entry examination. Okay, so today we will discuss the complete syllabus of IPU lead, and you can cover this syllabus or you can prepare for IPU lead by joining any module offered by modulation, like offline, and next is live plus recorded, and other is recorded, and test series is recommended for all. Okay, and by calling on the given number you can ask any doubt. So we will discuss a PDF here, so you can download this PDF from our Telegram channel. So I will show you how you can get this PDF. So open Telegram and you have to search modulation lead. Modulation lead, and you have to click on this channel, and from here you can get different kind of information from here. So in this you have to click here and go to file section, and in the last you will see there is a lead 2024 brochure. You have to download this brochure. Okay, it's a 24 brochure, but syllabus is same for 2025 also. So from here you can get the syllabus. Now I will discuss the syllabus. So this is the syllabus of IPU lead. You know, four section will come. One is computer awareness, 25 question, applied mathematics, 25 question, mechanics, 25 question, and reasoning, 25 question. Okay. So next we will see the detailed syllabus of each section, right? So here is the complete syllabus of IPU lead. Okay, here you are seeing maths, mechanics, reasoning, and also aptitude comes under this section, and last is computer, chemistry, and physics. So if we start with maths, you should start your first chapter. You must be matrix and determinant, next sets, next relation and function, then afterwards trigonometric ratios and trigonometric function, then afterwards you should start your calculus part, and that is calculus part is started from where it sets limits. Okay, then you have to start differentiation, integration, and differentiation function. This is the calculus part, and rest part you should also cover like straight line, circle, parabola, ellipse, hyperbola. Okay, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, उतना ध्यान नहीं है, बस प्रोबेबिलिटी पे आप थोड़ा सा पकड़ बना लेना। तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेक्टर एंड 3D भी आपको करना है। तो इस तरीके से ये मैथ्स के आपके मोर और लेस 30 चैप्टर्स होते हैं। सारे चैप्टर नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप क्लास में देखोगे तो लगभग ऑल चीज़ें आपको करा दी जाएंगी, जो कि आपको एक हायर वेटेज दे के जाएगा। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट आता है मैकेनिक्स के सिलेबस के ऊपर। तो मैकेनिक्स और फिजिक्स और सो सब एक साथ आते हैं, तो इसीलिए मैकेनिक्स और इसी में फिजिक्स का भी पार्ट आ जाता है। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन ही करते हो यूनिट डायमेंशन से, तो वहाँ से नेक्स्ट आपका फोर्स है, फोर्स सिस्टम, लॉ ऑफ फोर्स, सारे इसमें आप पढ़ लोगे। नेक्स्ट इज मोमेंट, फ्रिक्शन, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद ये भी वैसे मैकेनिक्स का पार्ट है, बट यहाँ से लॉज ऑफ मोशन हुआ या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन। और एक आपका कौन सा है, वर्क, पावर, एनर्जी, ये भी आपको करना है। तो ये अगर 3-4 चैप्टर आप कर लेते हो तो आपका फिजिक्स भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज सोम। सोम में आपको करना है स्ट्रेस स्ट्रेन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे इसका। फिर प्योर बेंडिंग, कॉलम इंस्ट्रक्ट, स्लूप एंड डिफ्लेक्शन, इससे भी नहीं आया आपके पार्ट, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट अभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है लेकिन इससे क्वेश्चन अभी नहीं आया है। टॉर्शन है नेक्स्ट, ट्रस, ट्रस भी नहीं आएगा आपको, स्प्रिंग भी नहीं आएगा। तो और भी चीज़ें अलग अलग आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो वो आपको क्लास में और भी अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन सोम का सिलेबस देखो तो यही है, लेकिन इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड में आप देख पा रहे हो, रीजनिंग में ये आपका सिलेबस है। ये PDF आपको मैंने बता दिया, टेलीग्राम पे जाके आप ले सकते हो। और इसके साथ ही आपको एप्टीट्यूड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें डायरेक्शंस हैं, जिसमें टिग्नोमेट्री भी आता है, 2D 3D मेंसुरेशन आता है, अलजेब्रा आता है। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, तो वो भी आपको पता होगा कि जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं या ऐप पे बच्चे हैं वो एप्टीट्यूड ही सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो उनको तो अच्छे से ये बात पता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप जानते हो जनरल पढ़ना है, डेवलपमेंट, इनपुट आउटपुट, मेमोरी। कंप्यूटर ये कंप्यूटर अवेयरनेस है, ठीक है, जो आप CS IT में पढ़ते हो वो तो नहीं है।
फिर पर्सनल डिज़ाइनिंग टूल, डेटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम, और ये सब थोड़ा सा आपको पढ़ना है। ओके, अब आपके पास क्या बच गया, केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री में आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन आने, ज़्यादा उस पर जोर नहीं देना है, पहले मेजोरिटी को कंप्लीट करें, उसके बाद केमिस्ट्री करें। तो एटम, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग, देन केमिकल इक्विलिब्रियम, मेटल नॉन मेटल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। और आपको पता है ये आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जब जाओगे तो यूट्यूब पर कंप्लीट केमिस्ट्री डली हुई एक एक करके, आप वहाँ से अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और भी किसी तरह का सपोर्ट चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। तो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ IPU लीड। और ऑब्वियस सी बात है, आप कैसे रैंडम पढ़ोगे ये आपको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं किसी भी माध्यम से हमसे। ठीक है, सो अच्छे से तैयारी कीजिए और बीटेक अच्छे कॉलेज से कीजिए, यही हमारा मोटिव है। थैंक यू।